नाउ लेट अस स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज 6A। सो इस मिसलेनियस में हमें क्या होगा, क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या गिवन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 3i + 4j - 7k एंड पैरेलल टू 6i - j + k। ठीक है, तो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में दोनों हमें, मतलब वेक्टर इक्वेशन के फॉर्मेट में हमें इसका इक्वेशन निकालना है। वी नो दैट द वेक्टर इक्वेशन of the line passing through a point, suppose A, whose position vector is a bar, and parallel to vector B is r bar is equal to a bar plus lambda b bar। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सो रिक्वायर्ड line is passing through which vector, that is a bar is equal to 3i cap plus 4j cap minus 7k cap। ठीक है, so here it is a bar, so from this point the line is passing and b bar is equal to 6i cap and parallel to, हम लिखेंगे इसको, and पैरेलल टू बी बार इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें, ये वेक्टर है 6i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। नाउ सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन या इन दिस फॉर्मूला। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, r bar इज इक्वल टू a bar प्लस लैम्बडा इंटू b bar। देयरफॉर r bar इज इक्वल टू व्हाट, a bar इज विद दिस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप plus lambda into b bar, that is 6i cap minus j cap plus k cap। So here it is the required equation of line, required vector equation of line which is passing through the position vector 3i cap plus 4j cap minus 7k cap and parallel to 6i cap minus j cap plus k cap। In this question number 2, here also we have to find out the vector equation of line which passes through the point 3, 2, 1 and parallel to the vector 2i plus 2j minus 3k। So we know that the vector equation of line which is passing through the point A, whose position vector is a bar and parallel to b bar, is r bar is equal to a bar plus lambda into b bar, as the required line is passes through which point, passes through 3, 2, 1। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को अगर ए कंसीडर किया तो ए बार उसका पोजीशन वेक्टर, सो ए बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये ए बार हो गया। ठीक है, एंड पैरेलल टू बी बार, वेयर बी बार इज इक्वल टू क्या है वैल्यू हमारे पास, दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। We know that the equation is r is equal to a bar plus lambda into b bar, so just substitute the value of a bar की वैल्यू क्या है हमारे पास, here it is 3i cap plus 2j cap plus k cap plus lambda into, इसको ब्रैकेट में डाल दिए तो बहुत अच्छी बात है, plus lambda into b bar is 2i cap plus 2j cap minus 3k cap। this is the required equation of line। Now in this question number 3, we have to find the Cartesian equation of the line which passes through the point -2, 4, -5 and parallel to this given line। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि if two lines are parallel then the direction ratios of both the lines are equal। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये जो लाइन गिवन है x + 2/3 is equal to y - 3/5 is equal to z + 5/6 has a direction ratio 3, 5, 6, then the required line which is parallel to given line also having direction ratios as 3, 5, 6। ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियोज है 3, 5, 6 और हमें क्या पता है, जो लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है, दैट लाइन इज पासिंग थ्रू -2, 4, -5। ठीक है, required line and
it is passing through and it is passing through -2, 4, -5, ठीक है। इसमें से वो, इस पॉइंट में से वो पास हो रही है। अब यहाँ पर ये क्या है, x1, y1, z1, ये क्या है, a b c, देयरफॉर x1, y1, z1 having coordinates -2, 4, -5 and direction ratios a b c are 3, 5, 6. Therefore the equation of line passing through -2, 4, -5 and having direction ratios 3, 5, 6 is, उसका इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। सो x माइनस x1 is -2, so x minus of minus मतलब x plus 2 divided by a having value 3 is equal to y minus y1 having value 4, so y minus 4 divided by b means it is 5 is equal to z minus plus हो गया, so z plus 5 divided by 6. So here it is the line which is passing through -2, 4, -5 and our direction ratios are 3, 5, 6, or in other words the equation of line which is passing through -2, 4, -5 and parallel to this line having equation x plus 2 divided by 3 is equal to y minus 4 divided by 5 is equal to z plus 5 divided by 6. Now in question number 4, here we have to obtain the vector equation of line. जो गिवन इक्वेशन है वो कौन सा है, इट इज कार्टेशियन इक्वेशन, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। सो एज हियर गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, x plus 5 divided by 3 is equal to y plus 4 divided by 5 is equal to z plus 5 divided by 6, ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब क्या निकल सकता है यहाँ से, किस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस चेक द लाइन, द गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू, यहाँ से पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, यहाँ पर आएगा -5, -4, -5, ठीक है। यहाँ से आप हमें डायरेक्टली फाइंड आउट करते आना चाहिए कि ये किस पॉइंट में से पास हो रही है। एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 3, 5, 6। तो देखिए ये जिस पॉइंट में से पास हो रही है उस पॉइंट का वेक्टर, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, लेट अस से पॉइंट ए whose the point A having position vector, point A having position vector a bar with respect to origin, with respect to origin is a bar is क्या आएगा इसका पोजीशन वेक्टर, देखिए -5i कैप -4j कैप -5k कैप, एंड इसका क्या है, ए बार की वैल्यू मिली हमें, एंड यहाँ पर क्या आएगा फिर बी बार। बी बार मतलब क्या होता है कि लाइन किसको पैरेलल है, एंड बी बार बी द वेक्टर विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन, या गिवन लाइन इज पैरेलल टू बी बार वेक्टर, ऐसा कह सकते हैं। तो बी बार की वैल्यू निकलते हैं यहाँ से, बी बार की क्या वैल्यू आएगी उसके डायरेक्शन रेशियोज से, दैट इज 3i + 5j + 6k। Therefore the vector equation of line is
क्या आता है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार। देयरफॉर यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे। ए बार की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5i कैप -4j कैप -5k कैप प्लस लैम्बडा इंटू बी बार हैविंग वैल्यू 3i कैप प्लस 5j कैप plus 6k cap. Here is the required equation. Now in question number 5, find the vector equation of the line which passes through the origin and the point 5, -2, 3. मतलब लाइन जो है वो दो पॉइंट में से पास हो रही है, एक ओरिजिन है, दूसरा एक कोई तो भी पॉइंट है 5, -2, 3. अब हमें पता है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. वी नो दैट हियर वी हैव टू यूज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला, अगर 2 पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर अगर ए बार और बी बार है तो उसका लाइन का इक्वेशन बनता है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार माइनस ए बार. ठीक है, ये उस लाइन का इक्वेशन है. तो हम क्या कंसिडर करते हैं, लेट अस अज्यूम बी बार इज इक्वल टू 5i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, यह हमारा बी बार है. और एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ point O bar that is origin is 0i cap plus 0j cap plus 0k cap. अब यहाँ पर क्या है, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा. क्या चेंज होगा, लेट अस रीराइट दिस फॉर्मूला एज ए बार आर बार इज इक्वल टू ए बार की जगह मैं 0 बार लिखता हूँ प्लस लैम्बडा इंटू बी बार माइनस 0 बार. अब 0 बार की जगह पे हम कुछ वैल्यू लिखते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो 0 आता है. देयरफॉर यहाँ पर ये क्या बनेगा हमारा, आर बार इज इक्वल टू, ये 0 नहीं लिखेंगे तो ये लैम्बडा इंटू बी बार, ये होगा हमारी लाइन का इक्वेशन. जस्ट राइट डाउन द वैल्यू ऑफ बी बार. व्हाट इज बी बार हियर, बी बार इज 5i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप. So here it is the equation of line which is passing through origin and the point 5, -2, 3 is r bar is equal to lambda into 5i cap -2j cap plus 3k cap. Now in question number 6, here we have to find the Cartesian equations of the line which passes through the points 3, -2, -5 and 3, -2, 6. सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि दो पॉइंट में से लाइन पास हो रही है तो उसका कार्टेशियन इक्वेशन किस फॉर्मूले से निकालते हैं. सो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2 इज x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 डिवाइड बाई y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 डिवाइड बाई z2 - z1. अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट अप करते हैं. तो लेट अस कंसीडर दिस 3, -2, -5 एज x1, y1, z1 and 3, -2, 6 as x2, y2, z2. जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x1, x2, y2, y1, y2 इन दोनों के वैल्यू सेम है. अगर हम उसका सब्ट्रैक्शन करते तो आंसर 0 आता है. ठीक है, तो वो कैसे आता है, क्या आता है वो पहले निकालते हैं हम. सो x - 3 डिवाइडेड बाय 3 - 3 इज इक्वल टू y माइनस ऑफ माइनस मतलब y + 2 डिवाइडेड बाय -2 + 2 इज इक्वल टू z माइनस ऑफ माइनस मतलब z + 5 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 6 माइनस ऑफ माइनस मतलब 6 + 5. ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये रेशो मिला हमें x - 3 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू y + 2 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू z + 5 डिवाइड बाय 11. बट वी जनरली डू नॉट राइट 0 इन द डिनोमिनेटर. सो हम क्या करेंगे, ये जो है ये इक्वेशन यहाँ पर लैम्बडा कंसिडर करेंगे और इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, यहाँ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू और z इज इक्वल टू. तो इसको इज इक्वल टू अगर हम लैम्बडा कहेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए. देयरफॉर द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन इज, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0 इंटू लैम्बडा इज 0, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर ये 0 इंटू लैम्बडा इज 0, ये +2 उधर चला गया तो -2 एंड z इज इक्वल टू देखिए मिलेगा 11 लैम्बडा -5 दैट इज -5 + 11 लैम्बडा. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है,
यहाँ पर हमें ये 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स में अगर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट इन दोनों की सबट्रैक्शन अगर हम करते हैं और वो सबट्रैक्शन अगर 0 आती है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Now, in this question number 7 also, we have to find out Cartesian equations of the line passing through the point 3, 2, 1 and b point 1, 3, 1। यहाँ पर देखिए ये पहले जैसा ही एग्जांपल है, इससे पहले जो सॉल्व किया ना हमने उससे जैसा ही एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप z कोऑर्डिनेट देखो तो z कोऑर्डिनेट मतलब z2 माइनस z1 अगर हम करें तो ये 0 आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी आर क्या मिलेंगे हमें, 3 - 1, 2 - 3, 1 - 1। तो क्या आएंगे डायरेक्शन रेशियोज? डायरेक्शन रेशियोज आर 2, -1, 0। ठीक है, 2, -1, 0 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स आर 2, -1, 0। अब डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। यहाँ पर उस लाइन पे जो एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, वो पॉइंट भी हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में वो सॉल्व कर सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में मतलब कैसे आता है वो, इट इज़, अब देखो यहाँ पर हमारे पास अगर इक्वेशन ऐसा है, x - x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू लैम्बडा है। तो पैरामेट्रिक में क्या आता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्बडा इंटू a, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्बडा इंटू b, z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्बडा इंटू c। ठीक है, हालांकि यहाँ पर कौन सी वैल्यू जीरो है, c की वैल्यू, डायरेक्शन रेशियो ऑफ c। यहाँ पर c की वैल्यू 0 है तो ये 0 यहाँ पर रख देते हैं, सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पर रख दो। तो क्या मिलेगा हमें, पासिंग थ्रू विच पॉइंट, कौन सा भी एक पॉइंट कंसिडर करो, a करो नहीं तो b करो। ठीक है, आपके दिल में जो है वो आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x1 की जो वैल्यू है वो 3 कंसिडर की मैंने। ठीक है, y1 की मतलब 3, 2, 1 वी हैव कंसिडर्ड दिस 3, 2, 1 एज x1, y1, z1। ठीक है, सो x1 की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दिया था पर 3 प्लस लैम्बडा इंटू a हैविंग वैल्यू 2 प्लस y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस लैम्बडा इंटू b की वैल्यू है -1, तो ये यहाँ पर ये बनेगा 2 माइनस लैम्बडा एंड z इज इक्वल टू z1 हैविंग वैल्यू 1। और यहाँ पर देखिए पोजीशन जो उसका डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू 0 है, सो c0 मतलब ये लैम्बडा वाली टर्म 0 हो जाएगी। देयरफॉर दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसको एक और फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर इसको लिखा जाता है ऐसे, देयरफॉर x - 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y - 2 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू लैम्बडा है, एंड यहाँ पर ये जो है ये z इज इक्वल टू 1 इसको लिखा जाता है। Therefore the required equation of line is, क्या मिलेगा इक्वेशन हमें, x - 3/2 इज इक्वल टू y - 2/-1 कमा z इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में भी आपको लाइन का इक्वेशन गिवन हो सकता है। इन क्वेश्चन नंबर 8 here we have to find out the Cartesian equations of the line which is passing through the point A, that is 1, 1, 2 are the coordinates of that point A and perpendicular to the vector b bar and c bar। ये दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो लेट अस डायग्रामेटिकली चेकिंग इट। सो सपोज ये है हमारा वेक्टर b बार और ये है वेक्टर c बार। इन दो वेक्टर्स को ये जो है हमारी लाइन, वो लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो ये जो दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स कैसे है, यहाँ पर एक वेक्टर b है और यहाँ कहीं भी इसी प्लेन में एक वेक्टर c है। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स, अगर यहाँ पर एक वेक्टर b होता है और यहाँ पर एक वेक्टर कहीं तो भी c वेक्टर होता है, सो ये जो c वेक्टर है, इस c वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। ठीक है, ये c वेक्टर और ये b वेक्टर। ठीक है, अब इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर रहने वाला जो वेक्टर है, क्या हम कह सकते हैं दैट वेक्टर इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b एंड c वेक्टर। यस, वी नो दैट इफ b क्रॉस c, अगर ये दो वेक्टर्स हैं हमारे और ये दो वेक्टर्स को कोई वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर को, सो दैट वेक्टर मस्ट बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b एंड c वेक्टर। सो द रिक्वायर्ड लाइन एज, हम यहाँ पर लिखेंगे एज रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ
B bar and C bar vectors. Therefore, can we say that a line is parallel to the line is parallel to the resultant of B bar cross C bar. ठीक है, एक तो वो B बार क्रॉस C बार का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर होगा या उस वेक्टर को पैरेलल होगा. ठीक है, सो द लाइन इज पैरेलल टू द B बार क्रॉस C बार. मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, B बार क्रॉस C बार. देखिए B बार, B वेक्टर क्या है हमारे पास, B वेक्टर इज I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड C वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. सो दीज आर द टू वेक्टर्स. अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. B बार क्रॉस C बार इज इक्वल टू I कैप J कैप K कैप. यहाँ पर देखिए B बार I कैप J कैप K कैप के कोएफिशिएंट्स 1 2 1, C दैट इज 3 2 माइनस 1. अब यहाँ पर हम उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं. I कैप इंटू -2 इज -4 -2 माइनस J कैप इंटू -1 -3 प्लस k कैप इंटू 2 -6. So here the vector is -4i cap plus 4j cap minus 4k cap. ठीक है, so here it is the vector B क्रॉस C. ये B क्रॉस C का वेक्टर मिला हमें. अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर समझो कोई लाइन है, वो लाइन अगर किसी एक पॉइंट में से पास हो रही है और दूसरी किसी वेक्टर को परपेंडिकुलर पैरेलल है, तो वेक्टर को पैरेलल है मतलब क्या, उस वेक्टर के जो I J K कैप के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो कोएफिशिएंट्स और वो जो हमारे रिक्वायर्ड लाइन है उस रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं. ठीक है, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस पर्टिकुलर वेक्टर इक्वेशन, हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज, द डायरेक्शन रेशियोज आर -4, -4, -4. एज दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, सो वी कैन डिवाइड ईच वैल्यू. मतलब इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले, -1, -1, -1. सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज. ये डायरेक्शन रेशियोज है. एंड द रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू, रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू which point, required line is passing through the point A 1, 1, 2. so उस वेक्टर का जो है हमें यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट पॉइंट इज A पॉइंट. और यहाँ पर क्या है, हमारे पास अभी रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गए हमें. तो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन ऑफ लाइन, दो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट क्या होता है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c. देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 दैट इज x माइनस 1 डिवाइडेड बाई a हैविंग वैल्यू -1 इज इक्वल टू y माइनस y1 दैट इज y माइनस y1 1. so y minus 1 divided by ratio is 1 and z minus 2 divided by the c having value -1. so here it is the required equation of our